Yes, welcome back. Children, today we discuss the transpose of a matrix. This is the fourth lesson for the matrices. Dear children, if you have is a matrix of order m cross A, then its transpose A dash और A पर T लिख देंगे, दोनों का मतलब एक ही है. इट बिकम्स AJI n क्रॉस n. रो कॉलम में, कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स 1 7 8 9 0 5. its order is how many rows? 2 rows and 3 columns. This is row number 1, this is row number 2, this is column 1, column 2, column 3. So its order is R into C, that is 2 cross 3. Its transpose A dash और A पर T का पावर लगा देंगे. It is 1 7 8 9 0 5. its order is 3 cross 2. रो कॉलम में, कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएंगी. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स. एंड इट्स का ट्रांसपोज यदि मैं कर दूं द्वारा से, देखिए सर क्या होगा. अगेन रो कॉलम में चेंज हो जाएगी. जो R1 था वो C1 बना देगा. 1 9 7 0 8 5. इट्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3. व्हाट इज दिस? इट इज A itself. सी, यही तो A है. सो वी कंक्लूड दैट किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है. यू रिमेंबर, राइट डाउन. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. Dear children, today we receive a circular from CBSE that the 30% of the syllabus or more than 30% of syllabus is deleted or reduced from your curriculum. So one of the portion from matrix, that is transformation of matrix, that is transformation, elementary transformation method for inverse is reduced. So no need to solve it. उसका नेक्स्ट वीडियो में आप देने वाला था, बट उसको अब नहीं करना है. हो गया. नाउ यू हैव द प्रॉपर्टीज, सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. Some properties of transpose of matrices. C. First property is, if you have sum of 2 or more than 2 matrix, you find their transpose. Then you always remember the transpose of the sum of 2 matrix is always equal to A transpose plus B transpose. Second, A minus B transpose. It is A transpose minus B transpose. Third, A into B transpose equal to B transpose into A transpose. ऑर्डर चेंज हो जाएगा सर. यू रिमेंबर, सपोज यू हैव अ कांस्टेंट स्केलर K into A transpose, then K remains unchanged into A transpose. K पर कुछ नहीं होगा. These are the property. And fifth, A into B और A transpose का ट्रांसपोज, ये तो अभी हमने एग्जाम्पल से वेरीफाई भी की. ए ट्रांसपोज. दीज आर दी प्रॉपर्टी वी यूज डायरेक्टली. इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे. These are the some properties. Please write down them.
Now, on the basis of the symmetric and skew symmetric matrix, on the basis of transpose of matrix, we have some more type of matrix. Earlier we discussed some types of matrices. Now some more type, that is, first is symmetric matrix. If A is a square matrix, that is, it is n cross n. It is a square matrix. The number of rows and number of columns are same. In such a way, such that A transpose मैं करूं और A itself आए. A square matrix whose transpose is matrix itself is called, then A is called symmetric matrix. So what is the symmetric matrix, dear? A matrix whose transpose is matrix itself. For example, you have to write any square matrix, then you see the magic. Suppose A equal to 1, 3, 7, 9. Find its transpose. Then you say 1, 3, 7, 9. My dear friend, इन दोनों का सम करके देखना जरा. Suppose it is a, again, I think दोनों का सम जो आएगा एक again a matrix आएगा. Suppose it is 1 plus 1, that is 2. 3 plus 7, 10. 7 plus 3, 10. 9 plus 9, 18. This is a matrix, say B. 2, 10, 10, 18. मैंने क्या किया? I have taken a square matrix. इसका ट्रांसपोज निकाला, दोनों का सम किया, then we get again a matrix of order 2 cross 2. अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखें बच्चों. प्लीज फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स बी. बी का ट्रांसपोज करें. बी का ट्रांसपोज करिएगा तो 2, 10 रो का कॉलम बनाया, 10, 18. आई थिंक इट इज बी इटसेल्फ, है क्या? सो व्हाट वी कंक्लूड, वी इज अ यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बी कैसा हुआ? बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आया, that is B is symmetric. So there is a property, what I want to tell you, the sum of a matrix, square matrix with its transpose is always symmetric. ये property है जो हम आगे prove भी करेंगे, वो हमने verify भी कर ली. We have a square matrix, its transpose, we find their sum, it is again a matrix. इसका transpose matrix itself है. It means that the sum of a square matrix with its transpose is always symmetric. This is a type of matrix. So whenever you want to write an example of symmetric matrix, you write any square matrix. मैंने 2 cross 2 लिखा, आप 3 cross 3 लिख लें, 4 cross 4 लिख लें, उसका ट्रांसपोज निकालें, दोनों को ऐड कर दें, ऑटोमेटिक जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो सिमेट्रिक होगी. नाउ यू हैव सेकेंड टाइप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. इन सच ए वे यू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड इट बिकम्स -a. अभी क्या था? +a था जी, अभी क्या आ गया? माइनस. देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये स्क्यू सिमेट्रिक है सर. अब एग्जाम्पल यदि जनरेट करने को कोई चैलेंज करता है, बच्चे बेचारे बहुत परेशान होते हैं, इसके एग्जाम्पल जनरेट सर कैसे रिकॉल करें, कभी रो लिखेंगे कभी, अरे पहले आपने सम निकाला था. नाउ वी हैव टू फाइंड बी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज. किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से डिफरेंस निकालिए. ए माइनस ए ट्रांसपोज देखो ऑटोमेटिक क्या बनता है जी? 1 minus 1, 0. 3 minus 7, that is -4. Then 7 minus 3, it is 4. 9 minus 9, 0. अभी B का ट्रांसपोज निकालो बेटे. इसको B ना सपोज करके मैं D सपोज कर लेता हूं. आप कहें नहीं पिछली बार भी आपने यही किया था.
डी बी भी सम भी ले लिया, डिफरेंस भी लिया, अब इसको हमने डी सपोज कर लिया. सो डी का ट्रांसपोज निकाला सर. व्हाट हैपन? इट इज 0 - 4 4 0. क्लियर? अब इससे माइनस साइन आप कॉमन लें सर, सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा. 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो नो इफेक्ट. एंड व्हाट इज दिस? इट इज -d. सो d ट्रांसपोज इक्वल टू -d. इट मीन्स दैट d कैसा है? d ट्रांसपोज इक्वल टू -d, दैट इज d is skew symmetric. So there is an property, there is a property, वो हमने वेरीफाई भी कर लिया. आपको कभी भी एग्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक का लिखना हो तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए, उसका ट्रांसपोज लिखिए, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी. सो आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. दे में आस्क राइट 2 or more मैट्रिक्स, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब बच्चे के हाथ पैर फूलने लग जाते, कैसे लिखें? वो बनाना शुरू करता है कि ट्रांसपोज जिसका सेम आएगा. कुछ नहीं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए 2x2 या 3x3 का, आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, इट विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक. क्लियर जी? सो दिस इज द वेरी यूजफुल type of matrices. There are 2 more type of. First is symmetric, second is skew symmetric matrix. Now we have 2 theorems. They are very useful. Over. ये हो गया. My dear children, on the basis of these 2 types, we have 2 properties or 2 theorems. One of them is theorem number 1. For any square matrix with a real number entries, a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric. Theorem 1. Can you tell me the page? 86. Any square matrix can be written as the if we find the sum of a matrix with its transpose matrix, then it is a symmetric. थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख लेंगे. करना क्या है ये देखिए सर. If A is a square matrix, ये गिवन है जी आपको. देन टू प्रूफ, हम ये प्रूफ करना मांगते हैं सम ऑफ द ट्रांसपोज. ये पहला प्रूफ है इसका. ट्रांसपोज मैट्रिक्स विथ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या होगा जी? सिमेट्रिक. टू प्रूफ ये है जी. ये अपन ने अभी वेरीफाई भी किया डेफिनेशन के साथ. सेकेंड टू प्रूफ ये है A minus A ट्रांसपोज इज ऑलवेज skew symmetric. Remember, where A is a square matrix of order n cross n, where all entries are real numbers. How we will prove? First part, let B equal to A plus A transpose. हम लोगों ने B को B सपोज कर लिया, सम ऑफ 2 मैट्रिक्स ऑफ n cross n order, then it will be a matrix of order n cross n only. अब हम क्या करेंगे जी? B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. क्यों? यदि B का ट्रांसपोज B इटसेल्फ आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा सर. देन यू रिमेंबर x प्लस y ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अभी आपने लिखी, x ट्रांसपोज प्लस y ट्रांसपोज. सो इट विल बी A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. देन व्हाट हैपन? A ट्रांसपोज. अब सर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है. सो यू से सर इट इज A. And in matrix addition, you remember x plus y may be written as y plus x. Commutative property is true for matrix addition. So it will be written as A plus A transpose. What is this? See, it is B.
So which implies B, that is A plus A transpose is symmetric. How you will prove? ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बच्चों को बड़ी परेशानी होती। थ्योरम का प्रूफ ज्यादा आसान होता है। प्लीज डू इट, जल्दी करें, इसको प्रूव करें और सिमिलर ट्राई करें A माइनस ए ट्रांसपोज के लिए। ऐसे ही आप ट्राई करें A माइनस ए ट्रांसपोज के लिए। यस, डू इट। हो गया? Over. Now we have the second proof. I think आपने ट्राई किया होगा. How we will prove? सेकेंड प्रूफ कैसे करेंगे? आप ऐसे मत करिएगा, मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं कर लेता हूं. लेट C इक्वल टू और D इक्वल टू, D लिया A माइनस ए ट्रांसपोज, देन व्हाट इज द D ट्रांसपोज? इट इज A माइनस ए ट्रांसपोज. अब मैं ये प्रॉपर्टी जो प्लस के लिए थी वो माइनस के लिए भी ट्रू है सर. आप प्रॉपर्टीज देखें. देन इट विल बी A transpose minus, then it becomes minus, then it becomes, अभी सर क्या होगा, आप x माइनस वाई से इससे माइनस साइन कॉमन लीजिएगा सर. इट इज द D ट्रांसपोज. D ट्रांसपोज इक्वल टू, टेक माइनस साइन कॉमन, जैसे x माइनस वाई लिखा, मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ऑब्वियसली y माइनस एक्स होगा. इट इज ट्रू फॉर मैट्रिसेस ऑल्सो. Distributive property, then you taking minus sign, so A minus A transpose. Clear जी? Then what is this? This is minus D. D है सर ये. So what do we conclude? We conclude that D equal to A minus A transpose is skew symmetric. This is the second proof. Do it. करिए. ये second proof हो गया सर. This is very useful property. My dear children, the next exercise based on this property only. So please prove it. Sometime they ask, since the elementary transformation method is reduced or deleted from curriculum, so they may ask the problem of the symmetric and skew symmetric matrix. It is sure, it is quite sure that they will ask the question related to symmetric and skew symmetric matrix. So you remember these properties. Now you have second theorem. Based on this, on page 86 of NCERT textbook, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. If you have a square matrix, then you remember any square matrix may be written as, yes, symmetric and skew symmetric. yes. My dear friend, second theorem जो है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, देन आपको ये शो करना है, टू प्रूफ ये है, देन A is written as, the square matrix A is written as a symmetric matrix plus a skew symmetric matrix. ये टू प्रूफ होगा आपके लिए. टू प्रूव दिस वी यूज द थ्योरम नंबर फर्स्ट. माय डियर चिल्ड्रन, अभी अभी आपने ये प्रूव किया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप उसके ट्रांसपोज से जो सम करते हैं वो सिमेट्रिक आता है, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके
ट्रांसपोज से डिफरेंस फाइंड करते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक आता है. सो यू हैव टू राइट A इक्वल टू 1/2A. लिख सकते हैं क्या जी? यस, 1/A. इसको आप लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज. क्लियर? देन इट इज 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A transpose. Clear ji? Now you remember what is this? If you suppose this is V equal to 1/2 A plus A transpose, then obviously V transpose equal to B as proved earlier. So it is B as symmetric. आप प्रूव कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो जैसे मैंने फर्स्ट थ्योरम में किया 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा. एंड C इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज. यू फाइंड आउट इस ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज फाइंड करिए, देन इट बिकम्स माइनस C, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. So what we conclude? We conclude that the given square matrix A is equal to B plus C, where V is nothing, it is half A plus A transpose, and C equal to half A minus A transpose, where V and C equal to V symmetric and C is skew symmetric. So finally what we conclude? We conclude that the given matrix A equal to B plus C, where V is symmetric and C is skew symmetric, and the value of A is half of A plus A transpose and C is half of A minus A transpose. This is very useful. There are so many problems in exercise, that is exercise 3.3. We have to solve these exercises, these problems on the basis of this property only. Write down. So what we conclude, once again I want to repeat it. My dear friend, for a square matrix, the sum of the matrix with its transpose is always a matrix that is a symmetric matrix, and the difference of a matrix, square matrix with its transpose is always a skew symmetric matrix. So that's why a square matrix may be written as the sum of a symmetric and a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है. स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. अब ऐसा मत कर देना कि कोई भी ऑर्डर ले लिया, मैं बोलूं 3x2 का है, सिमेट्रिक होगी? कभी नहीं होगी जी. स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज और दीज डेफिनेशंस और दीज थ्योरम्स we have the exercise. The exercise is known as, कौन सा exercise है जी? 3.3. Now we discuss some problem of exercise 3.3, then you have solved the remaining one. So exercise 3.3 के कुछ questions हम लोग इस basis पर discuss करते हैं. Read the first problem. Find the transpose of each of the following matrices. First, column wise 5, 1/2, -1. Only this. This is a column matrix. This is a column matrix. Its order is 3x1. How many rows? 1 row, 2, 3. And how many columns? Only 1 column. So A transpose is 5, 1/2 -1, that is 1x3. हो गया सर, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इतना ही करना है. फर्स्ट, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग वन. आई थिंक
मैं सारे सॉल्व करके दिखाऊं? आई थिंक नो नीड, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कोई और क्वेश्चन चाहिए? नो। अब सेकंड क्वेश्चन करिए, फर्स्ट के सारे आप करके देख लें। वेरीफाई करना है सेकंड में, सो सेकंड का कोई वेरीफाई करके दिखाऊं? आई थिंक आपको लेफ्ट अलग और राइट अलग बनाना होगा। प्लीज रीड इट। सेकंड का कोई एक रीड कर दीजिए। व्हाट इज ए? A equal to row wise -1 2 3 5 7 9 -2 1 1. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। यस। B is row wise -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. it is also a square matrix. My dear friend, my dear children, what do you want? हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं जी? We want to prove और verify हमको करना है A plus B transpose equal to A transpose plus V transpose. Clear जी? So first we have to find the value of left hand side, then we find the value of right hand side. So first you find A plus B. A plus B means इन दोनों का सम करना है। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स पर पेस्ट कर दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। आपको याद होगा इन अर्लियर एक्सरसाइज 3.1 3.2 हम लोग डिस्कस किए। -1 का कॉरस्पॉन्डिंग -4 दैट इज -5, इज इट? 2 1 दैट इज 3 -5 दैट इज -2, 5 1 दैट इज 6, 7 2 that is 9, 9 0 9, then -2 1 -1, 1 3 4, then 1 plus 1 that is 2. मैंने सिंपल एडिशन किया। नाउ A प्लस B ट्रांसपोज फाइंड कर दीजिए डियर। A प्लस B ट्रांसपोज जब फाइंड करिएगा तो ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। प्लीज राइट डाउन इट। A प्लस B का ट्रांसपोज लिखिएगा। क्या आ जाएगा जी? -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज लेफ्ट हैंड साइड मैंने बना लिया। अब माय डियर फ्रेंड आप राइट हैंड साइड बनाइए। क्या करिएगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करिए। अब व्हाट इज A ट्रांसपोज? A ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए इसकी रो कॉलम में चेंज कर दीजिए। -1 2 3 5 7 9 जो रो थी इसकी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना दिया। देन -2 1 1 प्लस, प्लीज फाइंड दी V ट्रांसपोज। इट इज -4 1 -5, second row 1 2 0 and third row 1 3 1. क्लियर? मैंने A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करके लिख दी। अब बेटे इनको ऐड करो प्लीज। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया वो ऐड करिए। -1 -4 that is -5, 5 plus 1 6, -2 plus -2 plus 1 that is -1, 2 plus 1 3, 7 plus 2 9, 1 plus 3 4, 3 minus 5 that is -2, 9 plus 0 9, 1 plus 1. See, it is the equation number second. Now you compare both the values. This is the left hand side outcome and that is the right hand side. I think they are equal. So at last you have to write first equal to second, that is left hand side equal to right hand side. Therefore first equal to second. Thus A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose. This is the way. They are very easy. Easy problem ही आते हैं। हम लोग पता नहीं क्यों क्लास 12th के नाम पर
इतना स्ट्रेस दे लेते हैं कि हम इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं. सो दिस इज द वे बाई विच यू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड आई थिंक आप कर लेंगे. सिमिलरली यू हैव टू वेरीफाई द थर्ड प्रॉब्लम. बट इन थर्ड प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड ए इज नॉट गिवन. यू नो थर्ड में क्या उसने, देखो जी, एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर लिया. थर्ड प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वैल्यू बस लिख दूं, बाकी आप करिएगा. ये रब कर दूं. In third problem, they have given the value of A transpose, I think, na? Generally, in second problem or in first problem, they give the particular matrix A, B, C, whatever you have. But here, उसने क्या बोला? If A transpose equal to, क्या given है जी? Column wise 3 minus 1 0 4 2 1. And B equal to Row wise minus 1 2 1 1 2 3. देन वेरीफाई, वही A प्लस बी ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है. सो ये टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है जी? A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose. माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड सेकंड प्रॉब्लम्स? सेकंड में आपको ए बी गिवन था, यहां ए बी ना देके ए ट्रांसपोज. मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूं जिससे आपको विजिबल हो. ए डैश भी लिख सकते हैं. ए इज नॉट गिवन. अरे ए ट्रांसपोज गिवन है, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए. क्या आ जाएगा? 3 4 -1 2 एंड 0 1. जो इसका फर्स्ट कॉलम था फर्स्ट रो बना दिया, जो इसका सेकंड कॉलम था सेकंड रो बना दिया. व्हाट इज दिस? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स ए, दैट इज 3 -1 0 4 2 1. ये ए आ गया. वी आपको गिवन है जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था, ये एक्स्ट्रा हो गया जी. अब यहां कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सर ये ऑर्डर है 3x2 और ये है 2x3, हाउ वी विल फाइंड देयर सम. अरे इसका सम थोड़ी फाइंड करना है, ए का सम फाइंड करना है. सो यू कन्वर्ट. अब तो हो जाएगा जी, अब तो 2x3 हो गया. लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, राइट हैंड साइड का वैल्यू, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों ने बनाया वैसे ही ट्राई करिए. चलिए करिए, डू इट. कैसे किया? अंडरस्टैंड? इसको करें. I think you understand this problem. Over. Yes. आई थिंक ये सॉल्व आपने कर लिया होगा. वेरी गुड. नाउ यू सी द फोर्थ वन. इट इज वेरी इजी. सेम प्रॉब्लम, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा v को. नाउ फिफ्थ आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है और यू ऑल आर एबल टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स. सो फिफ्थ आपसे आ जाएगा. सिक्स्थ, सेवेंथ,
सिक्स्थ आपसे आएगा, सेवेंथ आपको ट्रांसपोज का प्रोडक्ट. दिस इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस द सिक्स्थ वन. सिक्स्थ का कोई एक प्रॉब्लम मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है सर. किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का उसके मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट जो आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. हाँ सर, बोले सर. इफ ए इक्वल टू रो वाइज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा minus sin alpha cos alpha, then verify that A transpose into A prove that A into A transpose into A equal to I. सर A transpose फाइंड करिए. What is the A transpose? Cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में. नाउ देन ए ट्रांसपोज इनटू ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. प्लीज सी, मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया, ए ट्रांसपोज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया ए का. अब आपको याद होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2. रो सी इक्वल होना चाहिए जी सी आर, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट होगा. 2 2 है. अब रिजल्टेंट R1 इसकी क्या उठाते हैं जी, रो 1 रो 2. इसमें क्या कॉलम मार्क करते हैं जी. अब प्रोडक्ट करने का रूल याद करिए, मैंने क्या बता रखा है जी, R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2. कभी मिस्टेक नहीं होगी, इस फॉर्म में लिखिएगा कौन सा एलिमेंट कहां आएगा. देन R1 C1, R1 को ले जाइए C1 पर पेस्ट करिए, क्या बनेगा जी, cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. गॉट इट. R1 को आप C2 पर रखिए जी, क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दैट इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. सिमिलरली R2 का C1 में करिए, इट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा. R2 को C2 पर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड R2 C2 दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. अब सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा याद करिए बीते दिन बचपन के, वो बीते दिन क्लास 10th के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. आई थिंक इट इज 1 एंड दिस इज कैंसिल. साइन अल्फा minus cos alpha, that is 0. That's 0 and 1. What is this? It is identity matrix. So it is the way by which you verify. Similarly, you have the second part. I think you have the second part also. Clear? Question 7th. In problem number 7th, you want to find the whether the given matrix is symmetric. So you have to find it transpose. इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और आपको ट्रांसपोज करने से वो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिलेगी तो सिमेट्रिक हो जाएगा. हाउ यू विल शो दी मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक? उसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आएगा तो 7th हो जाएगा जी. होगा ना? आई थिंक 7th आपसे आ जाएगा. अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9th जैसे एग्जाम्पल में किया वैसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर 10th आप देखें. क्वेश्चन नंबर 10th का एक पार्ट में डिस्कस करना चाहूंगा. क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था उस मैट्रिक्स को आप 10th में जो गिवन है उसको ए सपोज कर लो. किसी भी पार्ट में कोई भी एक प्रॉब्लम रीड कर दो. 2nd, 3rd, 4th. Row wise 3, 5, 1 minus 1.
1 minus, this is the first problem क्या? Then you find its transpose. You know क्या आएगा सर? 3 5 1 minus 1. Clear जी? Then you say sir let V equal to half A plus A transpose. Half A plus A transpose का वैल्यू देखिए 6 6 6 and 0. Clear जी? 6 then 6 then 6 then minus 2 क्या? Clear जी? Then what is B? V equal to 1 by 2 से मल्टीप्लाई करिए 3 3 3 minus 1. C V transpose equal to 3 3 3 minus 1, that is B itself. So B is symmetric. B is क्या करना है? गिवन मैट्रिक्स को A सपोज कर लेना है, जो थ्योरम था उस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ फाइंड कर दीजिए. अब C फाइंड करिए. लेट C इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज. सो व्हाट इज A माइनस A ट्रांसपोज? सब्ट्रैक्ट करो बेटे. 0 4 देन minus 4 then 0. C equal to, then what is C equal to? 0 2 minus 2 0. 1 by 2 से इंटू कर दिया. C ट्रांसपोज फाइंड करिए. इट इज 0 2 minus 2 0. C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लीजिए तो माइनस C आएगा. सो C इज स्क्यू सिमेट्रिक. Now you want to express the given matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric B plus C, where V equal to this and C equal to this. आ गया सर, आंसर आ गया. ऐसे ही आपको 10th के करने. So this is the transpose of the matrix, dear children, and its property. 3.3 exercise is over. आपको इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करने हैं. इसके जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करने एज वेल एज द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 3.3. प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम. इट इज वेरी इजी. एंड 3.4 इज deleted from your curriculum, deleted from your syllabus. So now we have the miscellaneous exercise. In our next class we discuss the miscellaneous exercise. If you have time, then you try to solve the miscellaneous solved examples and exercise, miscellaneous exercise 3 of this chapter 3. We will discuss the some problem of miscellaneous exercise in our next class. So Jai Hind, Jai Bharat, take care.